Hey children, welcome back to your own math stimulus. Dear students, in this module you will learn differentiation of infinite series. Yes, differentiation of an infinite series C. And later on there is a surprise package for you as well. Surprise package means differentiation of one more surprise function. Let's see. If y is an infinite series, then can we find a differentiation of y? Wow, seems little bit strange, but yes children, you can find differentiation of an infinite series. Let's have the introduction. If we have a y such that fx raised to the power fx, raised to the power fx, raised to the power fx, and goes up till infinity, then what are the steps? First of all children, I have written you here fx directly. In the sum, first you need to judge fx. What is your fx? This would be your first step, judge fx. Second, children, if we have an infinite series and if we delete one term from it, or we add one term to an infinite series, it remains unaffected. It has no effect by adding or deleting one more term to it. So we'll use this fact here. We'll delete a single term from infinite series. This is our second step. And then we'll rewrite given function. We'll write given function as y is equal to fx raised to the power y. You can see here, if it is fx raised to the power fx, raised to the power fx, raised to the power fx, यदि मैं इन सब में से एक ये टर्म fx डिलीट करती हूँ तो रिमेनिंग टर्म इज अगेन an infinite series with you. So we can write this term as, which I have highlighted here as y. This term I have written here as y for you. So these are the three steps. First of all, judge fx, delete single term, and rewrite it in this form. Let's have a look how to apply this process with few solved examples. Number one is, if y is equal to x raised to the power x, raised to the power x, raised to the power x up to infinity, find dy by dx. फर्स्ट स्टेप क्या है चिल्ड्रन हमारा? वी नीड टू जज fx. यहाँ देखो क्या टर्म है जो बार बार रिपीट कर रही है, x रेज टू द पावर x, रेज टू द पावर x. सो अगर मैं अपनी इस एक टर्म को इसमें से डिलीट कर दूं तो रिमेनिंग जो टर्म है दैट इज ऑल्सो द इनफाइनाइट सीरीज. सो आई विल राइट दिस एज y. सी हाउ? This is your function. Now we can rewrite this infinite series as y is equal to x की power y. This is the change which I have applied here. मैंने इन सभी terms को यहाँ y लिख दिया है. This is the one and first and last foremost important step in these type of sums. Recognize fx and rewrite the function. So x is equal to y is equal to x raised to the power y. ये मैंने रीराइट किया है. अब हम इसे बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ यू नो इट वेरी वेल. अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड फर्स्ट. तो आप लॉग लीजिए बोथ साइड. लॉग y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर y, और वहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगेगी y log x. Now differentiate both side
विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, री राइटिंग ऑफ द फंक्शन। सेकेंड स्टेप पे हमने लॉग लिया है, और नाउ एट दिस स्टेप वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। 1/y dy/dx। यहाँ आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। y का डिफरेंशिएशन dy/dx इंटू लॉग x प्लस y एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/x। इस स्टेप पर आकर आप जितनी भी dy/dx की टर्म्स है बोथ साइड, उन्हें सिंगल साइड शिफ्ट करो। आई हैव शिफ्टेड इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दिस टर्म and this term shifted on left hand side. We are left with 1/y minus log x in the bracket and right hand side by y/x. Just find dy/dx by shifting all these terms to your right and you will get y/x. ये यहाँ जाएगी राइट साइड में, तो आपकी टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी and you will get finally this answer. तो क्वेश्चन यहाँ था बेटा, इफ y इज एन इनफाइनाइट सीरीज x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी, फाइंड dy/dx. सो दिस इज योर आंसर. यू हैव फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. ओ माय गॉड, देखने में क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि वो कैसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट. Question is, if y is equal to under root sin x plus under root sin x plus under root sin x plus under root sin x up to infinity. So again and again आप एक बार फिर से रीड करो टर्म को कि क्या टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है. जो टर्म रिपीट करेगी वही हमारा y बनेगा. हमारा fx प्लस एफ एक्स क्या जा रहा है हमारे पास, देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स. तो मेरी जो टर्म है यहाँ से अंडर रूट साइन एक्स प्लस, अगर मैं इस एक टर्म को इनफाइनाइट सीरीज से रिमूव कर दूँ क्योंकि दिस इज माई एफ एक्स, मेरा रेस्ट सेम रहेगा. सो दिस इज अगेन वाई. सो मैं इसे क्या रीराइट करूंगी, सी this is y is equal to under root sin x plus y. ये मेरा चेंज है. मैंने इस पूरी टर्म which is here in the box I have written it as y because it is again infinite series of under root sin x plus under root sin x and plus under root sin x. अगर मैंने इस एक टर्म को यहाँ से डिलीट किया है तो it has no effect. So this is my rewritten step. The given series I have rewritten as y is equal to under root sin x plus y. First important step, तो पहले हमने जजमेंट की, देन हमने रीराइट कर लिया. अब क्या करेंगे, तो सिंपल डिफरेंशिएशन. अब हमें कुछ नहीं करना. अब सिंपली विल गो एंड मूव ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट. आपके पास फंक्शन रिड्यूस हो चुका है, y is equal to under root sin x plus y. यहाँ अंडर रूट है तो फर्स्ट स्टेप पे आप स्क्वेयरिंग कर लो सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए. अगर आप इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई कॉम्प्लिकेटेड होगा. हमने कॉम्प्लिकेशन से बचना है, इसलिए डू स्क्वेयरिंग एट दिस स्टेप. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पर यू विल गेट 2y और y का डिफरेंशिएशन क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx आपके पास स्टेप आएगा. sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड dy/dx. शिफ्ट ऑल dy/dx टर्म्स कंटेनिंग dy/dx टू द वन साइड एंड फाइनली फाइंड dy/dx. Children, one more point needs to be focused. In the previous question, you were asked find dy/dx and now in this present question you are asked prove that. So both the question, if you are asked dy/dx still you will get this answer. अगर prove that है तो इसमें एक benefit आपके लिए है. You know already what answer would be in the last. तो आपको ऑलरेडी आंसर की जजमेंट है, ये आंसर आपका आना चाहिए. तो प्रूव दैट टाइप्स में आपको यहाँ सामने दिख जाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना लास्ट में आंसर लीव करना है, छोड़ना है. नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल.
y is equal to e raised to the power x plus e raised to the power x plus e raised to the power x up to infinity. Show that. Again here you need to show. फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड, सेकंड क्वेश्चन था प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन आ गया शो दैट. ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, हमने सब में करना सेम ही है, हमारा प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है. शो दैट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस yx. तो वी कैन सी इट्स अगेन एन इनफाइनाइट सीरीज. तो जज व्हाट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. Yes, you have judged it very easily. E raised to the power x plus e raised to the power x plus e raised to the power x is repeating again and again. So if I am encircling all this term, तो मेरे पास e raised to the power x plus ये मेरी सिंगल टर्म है, इसको डिलीट कर दूँ तो अगेन आई एम गेटिंग द सेम इनफाइनाइट सीरीज. तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको लिख दूंगी y e raised to the power x plus y. This is second step. Now simple, do the differentiation. I have rewritten it as e raised to the power x plus y. अब डिफरेंशिएशन करना है, एक्सपोनेंशियल है तो सबसे पहले हम कर लेंगे log both side, taking log both side, log y x plus y log e. और आपको पता है log e is 1, तो हमारी टर्म हो गई है log y is equal to x plus y. Now differentiate both side, take terms containing dy by dx one side and finally find dy by dx. This is the same, you are getting y upon 1 minus y. Now see one more question. If y is equal to root x raised to the power root x raised to the power root x up to infinity, show that this y square upon x into 2 minus y log x. So now you have judged very easily what is your y. What is a term again in repeating. अगर मैं इसको इस टर्म को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अगेन लेफ्ट टर्म्स भी मेरे पास y ही फॉर्म कर रही हैं. तो विल राइट इट एज रूट x रेज टू द पावर y. तो ये मेरी रीराइटेड टर्म है, y इज इक्वल टू रूट x रेज टू द पावर y. नाउ सिंपली आपके पास वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, आप लिख चुके हो, फंक्शन को रीराइट कर चुके हो, तो आप इसे लिख सकते हो x रूट x मीन्स x की पावर हाफ. तो ये आपका बन गया x रेज टू द पावर y बाई 2. नाउ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेक log, देन अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy by dx. यहाँ आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. y अपॉन 2 एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x एज इट इज एंड y बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 एंड dy by dx. नाउ सिंपली शिफ्ट ऑल टर्म्स ऑफ कंटेनिंग dy by dx to one side, remaining term to right hand side, and finally find dy by dx. See one more question. In this question you are given y is equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x and so on. बट इसमें बहुत ध्यान से हमें जज करने की ज़रूरत है कि हमारा क्या रिपीट हो रहा है. देखो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम sin x. ठीक है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x. अगेन sin x यहाँ आ रहा है, तो यहाँ के बाद से हमारी सारी टर्म हमने जहाँ से शुरुआत की उसके बाद जो रिपीट होना हुआ sin x के बाद फिर sin x यहाँ आया, ये सारी टर्म हमारी y बनने जा रही है. तो हम क्या रीराइट करेंगे, दिस इज टर्म विच इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. तो हम क्या एक टर्म रिड्यूस करेंगे, sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस तक हमारा सेम रहेगा, उसके बाद हम उसको y में रिड्यूस करेंगे. तो नाउ यू सी
y is equal to sin x upon 1 plus cos x अपॉन 1 प्लस दिस इज y। 1 प्लस में हमारे पास y आया, देखो 1 प्लस में y आया, 2 1 ऑलरेडी हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमारे fx की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आप एक ही बात ध्यान रखो कि sin x के बाद अगेन sin x कहाँ है, sin x के आगे जितनी भी टर्म जा रही है वो सब हमारा y है। बस अगर जजमेंट हो गई है तो अब क्वेश्चन ईजी है। अब आपने क्या करना है, अब आप सिंपली उसे सिंप्लीफाई करिए एंड कंटिन्यू करिए क्वेश्चन को। आपके पास अब क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लो 1 प्लस वाई, आपने 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स लिया, जो अपॉन वाला था ऊपर चला गया। अब बेटा अगर आप इसी स्टेप पे से डिफरेंशिएट करते हो, ये सिंप्लीफाइड टर्म है आपकी, तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्वोशिएंट फंक्शन है। इसमें आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी। उसको रिमूव करने के लिए यदि आप इस स्टेप पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो बोथ साइड, तो देखो आपके पास में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म आएगी y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स एंड इज इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमने अगेन सिस्टम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। इस स्टेप की इसलिए जरूरत थी टू मेक इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो पहले स्टेप पे हमने रीराइट किया, सेकेंड स्टेप पर हमने एलसीएम लिया और थर्ड स्टेप पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ अब हमारा ये स्टेप है फाइनल स्टेप, जिसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ये हमारा रेडी फंक्शन है। एट दिस स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स या 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस स्टेप पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा है। राइट साइड में भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद जितने भी टर्म्स हैं dy बाई डी एक्स कंटेनिंग, उन्हें एक साइड शिफ्ट कर दो एंड फाइनली फाइंड dy बाई डी एक्स। सो इन दिस वे चिल्ड्रन, नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आया है कि आप किस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज में fx को जज करोगे, उसे रीराइट करोगे, देन डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन। नाउ आई एम गिविंग यू few practice questions. Now you judge yourself in these questions. What is a repeating term again and again, what you can delete and find a differentiation. पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको हिंट प्रोवाइड किया है और अगले दो में आई एम श्योर आप 100% कर लोगे। तो ये क्वेश्चन करते ही आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड यू विल नॉट बी अमेज्ड। Yes, an infinite series can also be differentiated with respect to x or any other variable in which question is given. Now this is the time for surprise package. मैंने कहा था ना आपको एक सरप्राइज पैकेज में भी डिफरेंशिएशन आपका आने वाला है। तो what is it? Here it is differentiation of determinants. Yes, कुछ सीम कर रहा है कि determinants का differentiation. Yes children, we can find differentiation of determinants as well. What is it? देखो see, to differentiate any determinant, what step we follow? We differentiate either one row or one column at a time, keeping others unchanged. आपके पास सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया है 2/2 रो का, तो मेरे पास यहाँ डिटर्मिनेंट है fx, gx, ux, vx, ऑल अदर 4 फंक्शंस आर रिटन इन फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है या तो आप किसी एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, रो वाइज करेंगे, या आप कॉलम वाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स क्या होगा आपका, आप पहले स्टेप पर फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो f प्राइम एक्स g प्राइम एक्स ux vx एज इट इज प्लस नाउ fx gx एज इट इज एंड यू विल डिफरेंशिएट सेकेंड रो। तो फर्स्ट में मैंने फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया और सेकेंड में सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन। या आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉलम एट अ टाइम, leaving all other columns as it is, plus differentiation of second column, leaving all other columns as it is. Similar result will hold good
फॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हायर ऑर्डर। यदि ये आपकी 3/3 ऑर्डर की होगी तो पहले स्टेप पे आप फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन सेकेंड रो का, एंड देन प्लस में थर्ड का। लेट्स सी विथ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स how to apply. First solved example is if fx is equal to x plus a square ab ac ab x plus b square bc ab bc x plus c square determinant means this is a determinant of 3/3 order. Find f prime x. तो चिल्ड्रन मैंने आपको बताया कि जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे एक टाइम में, पहले टाइम में आप पहली ही either differentiate one row at a time और वन कॉलम। तो आई एम फॉलोइंग रो वाइज। तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन 1 + 0, दिस इज 1। ए बी कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है क्योंकि हमने यहाँ एफ प्राइम एक्स लिखा हुआ है, तो ए बी इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन इज 0। ए सी में एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए सी इज 0। लीविंग नेक्स्ट 2 रोज एज इट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट अ टाइम एक रो का डिफरेंशिएशन प्लस, नाउ विल डिफरेंशिएट सेकेंड रो। नाउ यू कैन सी सेकेंड रो में ए बी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स प्लस बी स्क्वायर का 1, बी सी का डिफरेंशिएशन 0। एंड नाउ यू विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड रो। सो यू कैन सी ए सी का डिफरेंशिएशन 0, बी सी का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स प्लस सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1। तो at this step we have done all differentiations. Now 3/3 की जो डिटरमिनेंट आपको मिली है इसे आप रिड्यूस करेंगे, expand this along the row which has maximum number of zeros. ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं। तो when you will expand this along R1 you will get this 2/2 matrix, 2/2 matrix here and 2/2 matrix here from this 2/2 determinants. These all are determinants. Now expand these 2/2 determinants, cross multiplying x plus b का होल स्क्वायर प्लस x plus c का होल स्क्वायर। आपने यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। सिमिलरली सॉल्व सेकेंड डिटर्मिनेंट एंड थर्ड डिटर्मिनेंट, सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट दिस आंसर as your final answer which is your differentiation f prime x of the given determinant. So I am sure children आपको समझ में आ गया है कि क्या मेनली करना है। यदि डिटर्मिनेंट है तो आपको एट अ टाइम एक रो को, फिर सेकेंड रो और फिर थर्ड रो वाइज आपने डिफरेंशिएशन करना है। रिमेनिंग को आपने एक्सपैंड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी। आपके पास 3/3 की डिटर्मिनेंट 2/2 में रिड्यूस हुई, देन सिंपली मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। सी वन मोर एग्जाम्पल बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका आई थिंक 24th है आपके पास में, ये 24th क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस का। इफ y इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट fx gx hx l m n a b c, प्रूव दैट dy by dx इज दिस डिटर्मिनेंट। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में था फाइंड dy by dx और यहाँ पूछ लिया है प्रूव दैट। देयर इज नो डिफरेंस, आपने सिर्फ dy by dx ही निकालना है। और अगर अब हमने dy by dx से मतलब y का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा l m n a b c ये सारी टर्म हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी। तो सी चिल्ड्रन 3/3 की डिटर्मिनेंट है आपकी। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एट अ टाइम आप फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट रो में क्योंकि एफ एक्स जी एक्स हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स, क्योंकि फंक्शन लिखा नहीं है तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो गया एफ प्राइम एक्स। जी प्राइम एक्स लिखने का सिर्फ एक डिफरेंट तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स एच प्राइम एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे एल एम एन क्योंकि कांस्टेंट है तो तीनों जीरो हो जाएंगे डिफरेंशिएशन। ए बी सी कांस्टेंट टर्म्स हैं तो उनका डिफरेंशिएशन भी आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो पहले स्टेप पे हमने रो 1 रो 2 रो 3 का डिफरेंशिएशन किया। ये करने के बाद देखो हमें यहाँ तीनों जीरो मिल गए हैं इस सेकेंड डिटर्मिनेंट के अंदर।
अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज आपकी ये डिटर्मिनेंट हो गई है ज़ीरो। एंड सिमिलरली आपकी यहाँ थर्ड रो आपकी इस डिटर्मिनेंट में हो चुकी है ज़ीरो, तो इसकी भी वैल्यू हो गई है ज़ीरो। तो अब आप जब इस डिटर्मिनेंट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आना है? सिर्फ आपकी यही डिटर्मिनेंट बचनी है। तो इसको हमने, क्योंकि आंसर में हमारे पास एफ प्राइम एक्स की फॉर्म में रिटर्न था, तो हमने यहाँ एफ प्राइम एक्स, जी प्राइम एक्स, एच प्राइम एक्स लिखा है। एल्स यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ रखा होता तो आप इसी में छोड़ देते, हार्डली मैटर्स। सो दिस वे योर आंसर इज एफ प्राइम एक्स, जी प्राइम एक्स, एच प्राइम एक्स, एल एम एन ए बी सी, यही डिटर्मिनेंट आपकी आंसर है। तो चिल्ड्रन, नाउ आई एम श्योर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया है। विद दिस बेटा हमारा चैप्टर 5 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ अभी किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ में या डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से इसको रिव्यू करो, एक बार फिर से पूरी वीडियो को देखो, आपको 100% क्लियर होगी। और आप इस टाइप के फ्यू मोर क्वेश्चंस एग्जाम्पलर या डिफरेंट डिफरेंशियल से ज़रूर प्रैक्टिस करो टू मेक योर टॉपिक स्ट्रॉन्ग। Thank you children for being patient and for viewing the video carefully. Thank you so much.